Hello everyone and welcome to Supergrads. My name is Abhinav Chauhan and in this video we'll have a discussion around the trend that has been there in the GIPMAT examination for the last 3 years. Verbal ability और GIPMAT examination एक ऐसा एग्जाम जहां पर you believe कि difficulty level थोड़ा easy है, number of questions थोड़े कम है, but trust me इसके जो type of questions हैं वो इतने varied हैं कि अगर एक टाइप आप पढ़ के नहीं गए हो तो ये इजी एग्जाम द सो कॉल्ड इजी एग्जाम ये भी आपको एग्जाम में चैलेंजिंग लग सकता है. सो दैट इज व्हाई आई एम हियर फॉर आई डिस्कस अ फ्यू ट्रेंड्स ऑन 2022 में पेपर कैसा था, 2023 में कैसा था, 2024 में कैसा था, एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द अपकमिंग ईयर. सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन स्टूडेंट्स. नाउ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के पहले आई ऑलवेज से कि यार you must know what are the major topics that are there in the exam. So again, we cannot we cannot overemphasize on the fact कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हर जगह है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर जगह है, इससे बच नहीं सकते आप. Especially when I talk about the GIPMAT examination, तो reading comprehension not as extensive as in IPMAT Rohtak or IPMAT Indore, but yes, इसके भी passages बहुत ज़्यादा straight forward नहीं होते, बहुत ज़्यादा easy नहीं होते. You cannot take it for granted. Then grammar skills. Again, when I say grammar skills, सारी चीजें आ जाती हैं. Verbs, tenses, subject verb agreement, narration, voice. उसके बाद आपके सारे parts of speech. क्वेश्चंस के टाइप कैसे होते हैं? एरर डिटेक्शन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस करेक्शन टाइप क्वेश्चंस होते हैं. सो एक अगेन एक ऐसा एरिया जो जिपमैट में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है. देन व्हेन आई टॉक अबाउट वोकैब स्किल्स, तो अगेन सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ साथ यू हैव डायरेक्ट idioms, sometimes you have contextual idioms as well, and you have questions of one word substitution. उसके बाद वर्ड यूजेज. अगेन वर्ड यूजेज, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, ये काफी एक आधा क्वेश्चन इसके आपको दिख जाते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट जिपमैट तो यार किसी भी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, बट one question from each type, one or two questions from each type. That is what the trend has been in GIPMAT for the last 3 years. Then synonym antonyms, again, you have 4 to 5 questions from synonym antonyms. Sentence correction again comes under grammar skills. Sentence rearrangement के भी there are 1 to 2 questions when we talk about your GIPMAT exam. Fillers. Now fillers can be of two types. They can be vocabulary based fillers. There can be grammar based fillers as well. कि करेक्ट वर्ब कौन सा होना चाहिए, करेक्ट preposition कौन सा होना चाहिए. So that is how the exam is like. Narration and voice, as I already discussed when I was talking about grammar skills. Now close test, this is something that is unique to this exam. कि एक paragraph होता है, it has a few blanks and it can have 4 to 5 blanks. That is what close test is all about. Then you have spell check. Yes, spell check and punctuation, again topics that are exclusive to this exam. ये टॉपिक्स आपके आईपीमैट इंदौर से ऑब्सोलीट हो चुके हैं. आईपीमैट रोहतक में भी इनका रोल अब नहीं बचा है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट जिपमैट एग्जाम, यस, अभी भी ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेल चेक एंड पंक्चुएशन. सो लाइक आई ऑलवेज से कि यार किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के पहले यू मस्ट नो एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने. सो दीज आर द मेजर थिंग्स अराउंड विच द एग्जाम रिवॉल्व्स. Now, coming to the trends that we have seen over the years. So, in 2022, topic कैसा था, difficulty topic कौन कौन से थे, difficulty level कौन कौन सा था, इन बातों के अराउंड डिस्कशन करते हैं. So, section had reading comprehension with 5 questions. When they say fill in the blanks can mean anything. It can mean fill in the blanks related to grammar skills, direct vocabulary questions, idiom questions. किसी भी तरीके के fill in the blank questions यहाँ पे हो सकते हैं. Then sentence improvement, sentence correction questions, synonym antonym, direct synonym antonyms आ जाते हैं जिपमैट में कि यार here's your word and tell me कि भी out of the given options कौन सा इसका correct synonym हो सकता है, कौन सा इसका correct antonym हो सकता है. That is how they ask questions in JIPMAT. Then error spotting, again they give you a sentence that is divided into 4 parts and you have to check which part of the sentence contains a grammatical error. So that is what error detection is. Active passive के भी I think 1 to 2 questions
yes, as written here, direct indirect speech, एक दो question, idioms and phrases का एक question, sentence rearrangement के question, one word substitution के question. So that is what the exam pattern was in 2022. And अगर आप level of difficulty करो, पूछोगे मुझसे, easy to moderate, अगर कोई बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, सो 2022 के पेपर में आई वुड से आउट ऑफ 34 वो 29 to 30 करेक्ट क्वेश्चंस इजीली कर सकता था, इफ नॉट मोर, बट दिस इज द मिनिमम दैट आई बिलीव कि इतना तो बच्चा कर ही रहा है 2022 के एग्जाम में, इतना तो बच्चों ने किया ही है. अगर बात करें अबाउट 2023 स्टूडेंट्स, सो व्हाट चेंज्ड, क्योंकि हर बार जब एग्जाम होता है, सो वी एज ट्रेनर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है, या हमारी क्यूरियोसिटी यही होती है कि यार इस बार क्या पैटर्न में कुछ चेंज था, कोई नया टाइप था क्या. दैट इज व्हाट कीप्स अस ऑन द एज ऑफ आवर सीट्स कि यार हाँ एग्जाम पेपर जैसे ही मिले सो देखें. बट टू बी ऑनेस्ट 2023 में भी ऐसा कुछ नहीं था, अगर मैं 2022 के कंपैरेटिवली बात करूं यहाँ पे. सो अगेन विद अ फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर स्किल्स, व्हेन आई से ग्रामर तो उसमें एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन भी इसमें बहुत सारा था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, fill in the blank type questions थे, vocabulary, when I say vocabulary it includes everything, it's an umbrella term for synonym, antonym, idioms and phrases and phrasal verbs and one word substitution as well. Foreign phrases का भी एक आधा क्वेश्चन बीच बीच में आ जाता है, some easy foreign phrases जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरीके से पढ़ रहे हैं that we feel कि हाँ ये इंग्लिश का ही पार्ट है, but no, they are taken from some other languages. So इस तरीके के क्वेश्चंस थे. अगेन इफ आई टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, हर बार हर साल एक ही बात जिपमैट एग्जाम में बोलता हूँ कि यार जिपमैट एग्जाम सच में बहुत ज्यादा इजी है. वर्बल एबिलिटी सेक्शन में कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट कैन बॉदर यू, एनीथिंग दैट कैन ट्रबल यू once you come to the actual exam. So again, rated as the easiest section in the exam, emphasizing grammatical accuracy and reading comprehension. देखो, in all the exams we say कि यार reading comprehension is important, grammar, vocabulary, इन्हीं चीजों के अराउंड सारी बात चल रही है. But in some exams, what happens is कि weightage vary कर जाता है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी लेवल्स हैं, इजी आएगा आप कर लोगे, which does not happen in आईपी मैट इंदौर और आईपी मैट रोहतक. बट अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप जिपमैट की बात करो, इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स क्वाइट इजी. बहुत ज्यादा इन्फरेंशियल रीडिंग वाली चीजें नहीं होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, यू जस्ट read the passage and answer the question. It is as simple as that. Then grammatical accuracy. So when I talk about grammar, आई से कि यार ग्रामर में देर आर 10 टॉपिक्स, आप 10 ग्रामर टॉपिक्स कर लो, उसके बाहर कुछ भी नहीं है. और किसी भी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, सो दैट वाज 2023. नाउ कमिंग टू दिस ईयर्स एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स, सो अगेन नो मेजर डिविएशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, नो मेजर डिविएशन, मतलब यस देयर वर माइनर डिविएशंस, क्वेश्चन टाइप्स में डिविएशन था, बट मेजर डिविएशन ऐसे बहुत ड्रास्टिक चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस जिसमें आप एग्जाम सेंटर में बैठ के ऐसे हो जाओ कि यार ये क्या आ गया, ये तो प्रिपेयर ही नहीं किया था. सो देयर वाज नथिंग लाइक दैट. And continued focus on core VA topics. When I say core VA topics, again, those three important topics: reading comprehension, grammar skills, vocabulary skills. वही बातें यहाँ पर लिखी हुई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन एंड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस. ग्रामर का रोल बहुत ज्यादा होता है व्हेन आई टॉक अबाउट द जिपमैट एग्जाम. ना डिफिकल्टी लेवल कैसा था, तो मेंटेन एन इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर मोस्ट candidates. So when it comes to the JIPMAT exams, JIPMAT exam IP MAT इंदौर, IP MAT रोहतक के बाद भी होता है. So what happens is कि आपके IP MAT इंदौर, IP MAT रोहतक अच्छे नहीं होते हैं, आप JIPMAT में भी जाके ब्लंडर कर देते हो. ये नहीं करना है, आपको अपना पेशेंस रख के चलना है. JIPMAT एक इजी एग्जाम है, वर्बल एबिलिटी सेक्शन तो है ही ऑफ कोर्स. अगेन इस बार भी जिन बच्चों ने पेपर दिया और जिन बच्चों को एग्जाम क्लियर हुआ, उनका कहना यही था कि सर आउट ऑफ 34 हमारे 31 32 क्वेश्चंस करेक्ट थे. एंड यस, it is doable, it is quite achievable for students who are appearing in the upcoming years. Now what are the major takeaways? And as I say, verbal ability section has been consistently approachable with predictable question types and moderate difficulty level. Predictable question type,
एरर डिटेक्शन होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, फिलर्स होंगे। बट ग्रामर में आपने जितने रूल्स पढ़े, ग्रामर क्या एक, आई वुड से 50 to 60 हॉट रूल्स होते हैं, हॉट टॉपिक्स होते हैं। अगर आप ये 50 to 60 रूल्स कर लेते हो, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग द जिपमैट एग्जामिनेशन इन द अपकमिंग ईयर। नाउ अगेन इट रिमेन्स क्रूशल कि आप ग्रामर स्किल्स, अगेन ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, और इतनी बेसिक 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 एंड आई रीइटरेट बेसिक, आप बेसिक्स अच्छे से कर लोगे, जिपमैट एग्जाम वर्बल एबिलिटी सेक्शन आपके पॉकेट में, देयर इज नथिंग दैट कैन ट्रबल यू। सो has there been any surprise element in the years? I think this is a curiosity not just for you guys but for us as teachers as well. जब भी हम नया पेपर देखते हैं, so we see यार क्या नया था, क्या नया था, and the answer to this question is a big no. And you can be all smiles when it comes to 2025. So 2025 में अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं कि यार अक्रॉस द इयर्स व्हाइल वर्बल एबिलिटी सेक्शन रिटेन्ड इट फोकस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी, आरसी, वेरिएशंस इन क्वेश्चन टाइप में वेरिएशन है और किसी चीज में वेरिएशन नहीं है। सो प्रिपेयरिंग ब्रॉडली अक्रॉस दीज टॉपिक्स रिमेन्स एसेंशियल for the students that are appearing next year. So students, that was all for this video. I'll see you guys in another one. Thank you so much.